Okay. So the topic for today is Pahari Korwa. Pahari Korwa. हाँ कोरवा बोल देते हैं जी, लेकिन कोरवा बोलना सही नहीं है. The tribe is actually Korwa. Since Korwa district is this Pahari Korwa, they are majorly concentrated in that district, so that Korwa got its name after Pahari Korwa. So you may call it Pahari Korwa, but calling it as a tribe, it is Pahari Korwa. Pahari Korwa. It is one of the PVTGs, particularly vulnerable tribal groups declared by Central Government of India. Other four are Abuzmania, Bega, Kamar, Birhor. And apart from these 5 PVTGs, there are 2 other PVTGs declared by state government, Pando and Bunji. Now, let's concentrate on Pahari Korwa. So we'll start with folklore. We'll start with folklore. So there are different folklores. In the stories related to the origin and naming of this tribe. So the first one is related to Mahadev Parvati. Look, Mahadev and Parvati, you know, Shiva and Parvati. Mahadev and Parvati, once they cut a jungle and they set that place on fire. For what? For cultivation, for agriculture. And this process is known as Dahiya in Korwas. Dahiya. अब गोदमत सब particularly आ जाएगा, मैं आऊँगा दाहिया पे. दाहिया, वो जो किसी एक एरिया को वहाँ से जंगल कट कर देना, उसको जला देना for agricultural purpose, that is दाहिया, है ना, amongst Korwas. It is known as Dahiya amongst Korwas. Okay, so Mahadev and Parvati, they also cut jungles and set on fire for agriculture. They sowed seeds over that field and they went from there. Okay, after before going there, before leaving that place, they made a scarecrow, humanly scarecrow को खड़ा कर दिया, so as to protect those crops, future crops from animals and all. तो scarecrow एक बना दिया humanly, and they handed over a bow and arrow. हाथ में एक तरफ तीर और एक तरफ धनुष थमा दिया और चले गए. After a few months, when they came back, they saw strong standing paddy crops there. Strong standing paddy crops there. The scarecrow was successful in keeping those animals away from the crops. So Parvati, very pleased after watching those crops, standing crops, requested Lord Mahadev कि स्वामी, मेरा निवेदन है आपसे, चूंकि इस पुतले ने हमारे इस फसल को बचा के रखा जानवरों से, तो इसे क्यों ना आप जीवन दे देते. सो अब स्त्री तो स्त्री है ना, अब पुरुष जो है पिघल जाता है, चाहे जितना कठोर. जीवन दे दिया, लाइफ दे दिया उस पुतले को, स्केयरक्रो को. और वही आगे चलकर फिर महादेव ने कहा कि तुम जंगलों में रहोगे और इस धनुष बाण के साथ जंगलों में रहोगे. तो वही आज कोरवा कहलाते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे जानवरों को भगाने के लिए स्केयरक्रो का काम क्या होता है, काव 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 कौवा कौवा, ऐसा कुछ इस तरह से प्रोनाउंस होता है. तो उसने बोल दिया कि तुम आज से कोरवा कहलाओगे और तुम जंगलों में रहोगे. तो एक फोकलोर ये हो गया कि कोरवा ऐसे पैदा हुए. फिर एक और फोकलोर है, वो राम सीता से रिलेटेड है. Few Korwas, they relate themselves to the period of Ram Sita. Folklore ऐसा है कि during exile period, Ram and Sita, they were passing through Sarguja. They stayed in Sarguja,
वो आए जब दंडकारण्य में अपना वनवास काटने आए तो सरगुजा में रुके थे। सरगुजा में उन्होंने खेतों में जो है पास करते हुए राम सीता लक्ष्मण जा रहे थे, तो खेतों में देखा कि एक लहलाती फसल है और वहां बीच में एक सुंदर सा पुतला धनुष बाण पकड़े हुए है। तो सीता ने अब रिक्वेस्ट कर दिया राम से, तो राम ने जो है उस पुतले में जान फूंक दी और वही कोरवा कहलाया। तो एक तो आप लोगों ने देख लिया, मैं एकदम मैथोलॉजी में एकदम पीछे जाके महादेव है ना, महादेव और पार्वती की स्टोरी, और एक देख लिया राम सीता की स्टोरी, और एक और डाल्टन है। डाल्टन ने एक फैक्ट मिलेगा आपको कि एक हो गया, एक महादेव पार्वती वाला हो गया, ओरिजिन इसका महादेव पार्वती वाला, और दूसरा आपने देख लिया राम सीता। और एक और फैक्ट आप देखोगे डाल्टन, देयर वाज अ राइटर कॉल्ड डाल्टन। डाल्टन हैज रिटन अ बुक called known as Descriptive Ethnology of Bengal. Descriptive Ethnology of Bengal. ये बुक है in the year 1872. तो उन्होंने डाल्टन ने भी इस बुक में पहाड़ी कोरवा के ओरिजिन के बारे में बताया है। बस एक ऐसी बुक की भाई किसी ने बताया तो डाल्टन, the writer was Dalton in his book Descriptive Ethnology of Bengal in 1872 had described or had given information about the origin of पहाड़ी कोरवा। एक ये आपको याद रखना होगा। और राम सीता लक्ष्मण अपने एग्जाइल के दौरान सरगुजा से गुजर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने फसल उगाई हुई है और उसमें जो है एक पुतला जो है बीच में सुंदर सा उस फसल की रक्षा कर रहा है। तो सीता जो है बहुत खुश हुई, सीता ने निवेदन कर दिया, और चूंकि सीता ने निवेदन किया तो राम को मानना पड़ेगा, लाइफ दे दिया। ठीक, उस पुतले को लाइफ दे दिया और वही आगे चलकर क्या कर रहा है, कोरवा। उसके बाद अब एक और स्टोरी है, और ये भी लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। वन मोर स्टोरी रिलेटेड विद लॉर्ड शिवा। देखो, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, लॉर्ड शिवा, ओनली लॉर्ड शिवा। अब देखो क्या, अकॉर्डिंग टू दिस फोकलोर, लॉर्ड शिवा during the creation of this universe, Lord Shiva took soils from mitti, लिया ना, soil from two mountains called Kala and Bala. Kala and Bala from Ratanpur state. रतनपुर स्टेट जो एशियन टाइम में था, वहाँ के दो माउंटेन्स से काला एंड बाला, वहाँ से मिट्टी लिया और दो मैनिक्विन बनाए। मैनिक्विन जानते हो ना, वही पुतला है ना, हिमनली जो दिखता है आदमी जैसा, वो उसे पुतला कहते हैं। तो ही मेड टू मैनिक्विन्स, मैनिक्विन QUIN होना चाहिए, हाँ, मैनिक्विन, दो पुतले बनाए। ठीक, और इन दो जो पुतले हैं उसमें उनका नाम किया। एक का नाम लिखा कैला, ये दो मैनिक्विन का नाम क्या था, एक का नाम कैला, और एक का नाम घुमा, ये दो पुतले बनाए, दो कैला और घुमा। और आगे चलकर फिर लॉर्ड शिवा ने दो और फीमेल मैनिक्विन बनाए। दो फीमेल, अकेले बेचारे बोर हो रहे थे तो दो फीमेल मैनिक्विन बनाया। अब उनका नाम सिद्धि और बुद्धि, दो सिद्धि और बुद्धि। कैला का शादी हो गया सिद्धि से और घुमा का शादी हो गया बुद्धि से। ठीक, एक ये स्टोरी है। ठीक, कैला एंड घुमा। अब देखो उसमें हुआ क्या कि कैला मैरिड सिद्धि और इनसे तीन सन हुए। इनसे कितने सन हुए, 3 बेटे हुए। 3 बेटे कौन कौन, एक हो गया कोल, एक हो गया कोरवा और एक हो गया कोजाकू। एक हो गया कोल, एक हो गया कोरवा
और एक हो गया कोजाक। कोजाक। अब ये तीन बेटे मतलब कैला और सिद्धि से उत्पन्न हुए ये तीन बेटे, कोल, कोरवा एंड कोजाक। एंड कोरवा दस गॉट इट्स नेम। कोरवा ऐसे ओरिजिनेट हुई एक स्टोरी से, ठीक। अच्छा, नाम कोरवा, कोरवा के भी दो बेटे हो गए। अब देखो कोरवा के दो बेटे हो गए, इन देखो कैला और सिद्धि के ये तीन बेटे, कोल, कोरवा एंड कोजाक। अब कोरवा के दो बेटे हुए, मतलब नहीं मालूम उसकी वाइफ होगी, वो नहीं पैदा किया है, उसकी वाइफ होगी, उससे पैदा हुए होंगे। एक कहलाए, एक बेटा जो है वो माउंटेनियस रीजन में रहने लगा, जंगलों में जाकर पहाड़ियों में रहने लगा, वो कहलाया पहाड़ी कोरवा। वो कहलाया पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा। और एक बेटा जो है वो पहाड़ों से नीचे जाकर प्लेन्स, विलेजेस में रहने लगा, गांव में रहने लगा, तो उसको कहा गया डिहारी कोरवा। डिहारी कोरवा, डिहारी असल में डी का मतलब गांव होता है, डी का मतलब गांव होता है। तो एक बेटा जो है पहाड़ों में जंगलों में रहने लगा, वो कहलाया पहाड़ी कोरवा। और one of his sons started living in plains, in villages, है ना, in the plains, on the foothills of mountains, तो वो क्या कहलाने लगे, बिहारी कोरवा। सो हम कह सकते हैं कि कोरवा, these कोरवा tribes, they have two groups, one is पहाड़ी कोरवा, another one is बिहारी कोरवा, living in plains, पहाड़ी कोरवा obviously living in mountains, ठीक। यो now introduction, now Dalton, बिहारी कोरवा। डाल्टन, ये नाम तो सुन ही चुके हो, डाल्टन। तो डाल्टन हैज रिगार्डेड, डाल्टन बिलीव दैट जो कोरवा ट्राइब्स हैव their origination from Kolarian groups. Which group? Kolarian group. According to Dalton, Korwas they have originated from Kolarian group. And what is Kolarian group? Actually, it is a non-Aryan family group. देखो हम आगे पढ़ेंगे, जब ये पीवीटीजी पढ़ा दूंगा ना, तो हम आएंगे इनकी लैंग्वेज फैमिली में, लैंग्वेज फैमिली है ना, आर्यन ग्रुप, नॉन आर्यन ग्रुप, लैंग्वेज फैमिली में आएंगे। मींस दिस ग्रुप्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस दिस ट्राइब्स स्पीक, ठीक है। तो इसी में आप इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाल्टन ने इन्हें कौन सी लैंग्वेज फैमिली ग्रुप का माना है, कोलारियन ग्रुप। एंड व्हाट इज कोलारियन ग्रुप? इट इज एक्चुअली अ non-Aryan family group, language family group, sorry, non-Aryan language family group, language family group। अभी आप इतना ही जानो, family group, एक ये फैक्ट हो गया। और यहीं पर डाल्टन gives one more information that these Korwas they speak Mundari language. Which language they speak? Korwas Mundari language, Mundari language, and it's a language of Austric language family. मुंडारी लैंग्वेज बोलते हैं कोरवास, और ये जो मुंडारी लैंग्वेज है ये कौन सी लैंग्वेज फैमिली ग्रुप की है? ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली ग्रुप, हाँ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। Now, their residence. कोरवास रहते कहाँ हैं? Residence now. लो इनका रेसिडेंस देख लो। Now where do Korwas live? इधर सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बलराम,
ये है इनका रिकॉर्ड, पहाड़ी कोरवा यहाँ रहते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक सर्वे हुआ था अराउंड 2006 एंड ऑल, नॉट इम्पोर्टेंट, सो उसमें फैमिली सेंसस किया गया था, पहाड़ी कोरवा की कितनी फैमिलीज कहाँ रहती हैं। सो द मैक्सिमम, एक फैक्ट आपको जो ध्यान देना चाहिए, मैक्सिमम कोरवा फैमिली कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहती है, सरगुजा, उसके बाद जशपुर, उसके बाद कोरबा, ये आपके नोट्स में भी रहेगा और कभी ऐसा पूछ दे तो मैक्सिमम पहाड़ी कोरवा फैमिली कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहती है, सरगुजा। इन इनडायरेक्टली इट आल्सो मींस दैट पहाड़ी कोरवास आर मेजरली कंसंट्रेटेड इन सरगुजा। आपका पहला ऑप्शन वो ऐसे ऑर्डर में रहेगा भी आपके नोट्स में, तो कैसे ऑर्डर में रहेगा, सरगुजा हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ पहाड़ी कोरवास, देन जशपुर, देन कोरबा एंड देन एट लास्ट बलरामपुर। एक ये आपको ध्यान रखना है। नाउ एक और फैक्ट, The कोरवास ये ना दे आर वेरी रॉयल, दे आर वेरी रॉयल। कैसे हमें पता चलता है कि जब हम पढ़ते हैं ना, रियासत पढ़ रहे थे, जब हम रियासत पढ़ रहे थे तो सरगुजा और जशपुर के बहुत सारे, सरगुजा रियासत में तो ये देवर जमींदार, कोरवास देवर जमींदार, एंड इन जशपुर देवर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ दीवान, इन्फ्लुएंस ऑफिशियल पोस्ट था दीवान। तो आप देखेंगे कि ये जो पहाड़ी कोरवा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट they belong to PVTG, particularly vulnerable tribal groups, but they have a very sound background in the ancient times during रियासत period, princely state periods। तो ये सरगुजा में जमींदार भी थे और जशपुर में ये दीवान को पोस्ट करते थे, ठीक है। नाउ सोशल सिस्टम, नाउ विल कम टू सोशल सिस्टम अबाउट पहाड़ी कोरवा। सोशल सिस्टम, they are very orthodox, रूढ़िवादी बोलते हैं ना। वैसे अपन हम लोगों ने देख रहे हैं कि ट्राइबल्स दे आर वेरी मच मोर मॉडर्न देन अस, पीपल लिविंग इन सिटीज एंड ऑल, दिख रहे हैं, लेकिन दे आर क्वाइट ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स से इनकी खासियत क्या है, ये ऑर्थोडॉक्स भी हैं और दे लव आइसोलेशन। वो ग्रुप बहुत जल्दी ग्रुप में बनाकर रहते नहीं है, बहुत दूर एक जो है पहाड़ी कोरवा का एक परिवार यहाँ पे इस पहाड़ी पर है और दूसरा पहाड़ी पता चल रहा है कि 2-3 किलोमीटर बाद दूसरे पहाड़ी पर दूसरा कोरवा, पहाड़ी कोरवा का फैमिली है ना। यहाँ पे सुबह सुबह कैसे बातचीत हो रही है, कैसे हंसबो, पोंगा लगा के, अब दूर दूर रहते बात किसे करेंगे, है ना। तो वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमंस टू एटलीस्ट कम्युनिकेट। अकेले अकेले रहेंगे तो बोर आ जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो कहाँ पोंगा लगा के कैसे क्या करत हस वो, का रांधे हस, तो के आवाज आते अरे पालक रांधे हो रे, पालक और मैं कटुम्बा रांधे हो रे। तो दे लव आइसोलेशन, एक ये हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद ये इम्पोर्टेंट, पहाड़ी कोरवास दे लिव ऑन मचान्स built on trees, पेड़ों के ऊपर जो है ऐसा करके एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड मचान्स। एक खासियत होगी कि पहाड़ी कोरवास आर द ट्राइब्स दे लिव ऑन मचान्स ओवर द ट्रीज। एक ये दूसरा हो गया, मचान्स, दे लिव ऑन मचान्स। नाउ सेकंड फीचर, their favorite beverage is hania. Hania is nothing but, actually hania is a liquor made from rice। तो ये देख लो आप, ऐसे पूछेगा होगा फेवरेट बेवरेज इनका कौन सा है, हनिया, राइस चावल से, है ना। अरे पेज नहीं बोलेंगे यहाँ पर, इनका ये हनिया बोलेंगे, ये हनिया बोलेंगे ना, पेज हलवा बोलते हैं। आओ अच्छा, अब देखो सारी महिलाएं प्राचीन काल से चाहे जैसे भी हों, हड़प्पन काल में देखते हैं तो वो भी पत्थरों का इधर उधर का कुछ गहना पहनती थी, ये विमन नेचर है तो ये लोग भी पहनती हैं। लेकिन इनके में खासियत है, अक्सर ना जो ट्राइबल्स होती है ना, वो गिलेट होता है, गिलेट का गहना पहनती है। यहाँ एक खास बात मिली कि पहाड़ी कोरवा की जो ट्राइबल वुमन है वो लकड़ियों से गहना बनाकर पहनती है ना। तो एक खासियत इनकी क्या है, दे वेयर वुडन ऑर्नामेंट्स। वुमेन्स इन पहाड़ी कोरवा दे वेयर वुडन ऑर्नामेंट्स, वुडन ऑर्नामेंट्स पहनती है ना। अच्छा, नाउ देयर इज अ वेरी
very specific ritual or very deadly also. Darha, it is known as Darha. Darha. What is Darha in amongst Pahari Korwas? Now Darha is actually a ritual when children, Pahari Korwa children, when they attain the age of 5. Now, at this age, when they cross the age of 5, Pahari Korwas actually they make 10 to 16 signs over the bodies of children by fire. दागते हैं आग से दाग कर 10 से 16 निशान बनाते हैं पहाड़ी कोरवा जब उनके बच्चे 5 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं और दैट प्रोसेस इज नोन एज दरहा है ना मतलब क्या है ये आग से दाग लगाकर बच्चों में जब 5 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं तो उनमें दागना दाग कर निशान बनाना दैट इज कॉल्ड दरहा 5 साल कितने साइंस 10 to 16 साइंस इट्स नॉट फिक्स्ड लेकिन 10 से 16 साइन बनाते हैं दाग कर तो दैट प्रोसेस इज नोन एज दरहा ठीक नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक सिस्टम of Pahari Korwas. Economic systems of Pahari Korwas. They are hunters and forest product gatherers. तो पहला फीचर क्या है पहाड़ी कोरवा का हंटर से तो शिकारी तो ही है दे आर हंटर्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरर्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरर्स एक ये हो गया फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरर्स प्रोडक्ट है फॉरेस्ट का प्रोडक्ट जो कि कंद मूल जितना भी प्रोडक्ट है वो इकट्ठा करते हैं so since they are forest product gatherers so for gathering these forest products they lead a nomadic life जानते हैं घुमंतु घूमते रहते हैं इधर से उधर दूर दूर घूमते रहते हैं ठीक now since they are nomadic अच्छा एक और चीज ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरर्स हैं हंटर्स इनकी एक खासियत है जब ये शिकार के लिए जाते हैं ना तो रास्ते पर ये कहानी सुनाते जाते हैं they tell stories है ना while going on for a hunting तो ये जब शिकार के दौरान जाते हैं तो ये ट्राइब में खास बात है कि ये स्टोरी कहानी बताते चलते हैं कहानी जोर जोर से कहानी बताते चलते हैं हाँ वही है ना देवारी और दाहिया एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा देवारी और दाहिया वो दाहिरा था दाहरा और ये क्या है दाहिया ये क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन डन बाय पहाड़ी कोरवास इज नोन एज देवारी और दाहिया वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहीं जंगल काट देना पेड़ काट देना आग लगा देना प्लाव इस्तेमाल नहीं करते आग लगा देते हैं कुछ समय बाद वहां बीज बो देते हैं मानसून आता है और फसल हो जाती है इसको कहते हैं अपन क्या दाहिया ये लोग क्या कहते हैं पहाड़ी कोरवा में दाहिया और देवारी so this is nothing but shifting cultivation by pahari korwas okay now they have deep connections with wood products also wood है ना बाय प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट वुड तो ये लकड़ियां बेचने का इनका जो देयर इकोनॉमिक सिस्टम इज आल्सो बेस्ड ऑन सेलिंग वुड्स ये लकड़ी भी बेचते हैं ये एक इनकी खासियत है पहाड़ी कोरवा ऐसे तो पगली सारे ट्राइब का कनेक्शन फॉरेस्ट से ही है वुड्स लकड़ी बेचने का काम करते हैं मेरे को लग नहीं रहा था लेकिन बहुत मैं कल रात से स्ट्रगल कर रहा था हुआ ये कि वेल्डिंग का काम चल रहा था तो टू मिटिगेट द मतलब लो फाइनेंसेस आई स्टार्टेड डूइंग हेल्परगिरी
वो पकड़ना ये वो सब मैं उसके साथ ही था। वो वेल्डिंग कर रहा था तो ना चाहते हुए भी ना मैं ऐसे देख ही लेता था वेल्डिंग, और चश्मा पहना नहीं था, और वेल्डिंग मशीन जो है वो लौटानी थी। तो और कल रात तक हुआ चला, तो ऐसे ऐसे मैं खड़ा रहता था, फिर भी ऐसे देख लेता नेकेड आई, और नेकेड आई वो समझ जो यूवी रेस की तरह काम करता है। तो मेरे को उस समय तो पता नहीं चला। मैं रात में 2 बजे मेरी आंख में बहुत तेज दर्द होने लगा, ये सूज गई, लाल हो गई, अभी भी लाल ही होगी। अब साला का रात से परेशान, तो मेरे को बातचीत करते करते वो वेल्डर के लड़के के मुंह से सुनाई दिया था कि जब आंख में ऐसा हो जाता है तो टूथपेस्ट लगाते हैं। तो मैं रात को उठा, सारा कुछ तो था नहीं, तो टूथपेस्ट लगाया ऐसे, तो वही चैन नहीं पड़ रहा, ये वो, तो बहुत मतलब 2 बजे से परेशान था। रहते रहते सुबह 5 बजे उठाया, उठो जी उठो, वो सोती भी बहुत गहरा है, उठो, अरे उठ मेरा आँख जा रहा है। तो उठी, तो फिर बोली क्या हुआ, खोलो आँख। बोला आँखें तो नहीं खुल रही, जल रहा है और आँख नहीं खुल रही। तो पहले बोली डेढ़ होशियार है, दुनिया को पता है क्या पढ़ाते हो बच्चे लोगों को, तुमको नहीं पता है कि वो वेल्डिंग जो होता है उसको देखने से आँख खराब हो सकती है। तो मैं बोला चाहे अभी देख, लेक्चर मत सुना, अब उपाय कर इसका, क्योंकि ये ना तो सोने दे रहा है ना कुछ करने दे रहा है। फिर वो यूट्यूब में खोजने लगी, तो वहाँ आसपास उसको बोले कि ठंडा रखना है, तो गुलाब जल मिला, गुलाब जल रुई में लो, गुलाब जल ऐसे तैसे। 7 बजा तो नीचे जब दरवाजा नीचे साइड खोला तो गई आई ड्रॉप लेके आई, कुछ काम नहीं कर रहा। फिर मैं बोला सुन मेरे को याद आया है, वो बोला है कोलगेट फ्रेश वाला लाल वाला जेल है कि अपने यहाँ, वो ढूंढ के लाई। बोला लगा उसको, तो लगा के अब उससे सब दिक्कत ये है कि वही इससे चैन देगा, और वही साला का यहाँ लग जाए तो और अंदर चले। तो मैं करीब 2 घंटे ऐसे पड़ा रहा। उसके बाद फिर 11 बजे के आसपास डॉक्टर रश्मि पांडे से अपॉइंटमेंट ले ली, पहुँच गई वहाँ मेरे को लेके। मैं बोला अरे यार नहीं जाते, एक अभी बहुत सारा काम है। रश्मि पांडे के पास जाएंगे, 500 रुपये फीस है उसका, 500 रुपये ले ली, और 1000 रुपये से कम का दवाई लिखेगी नहीं। हाँ सुंदर तो है। अरे पगली, मैं अब मेरे को याद आ रहा था उस वेल्डर का बात। वो वेल्डर बोल रहा था अरे भैया मैं तो यही काम करता हूँ, तो बार बहुत तगड़ा जलन और ऐसा होता है, मेरे को यार वो ठीक हो जाता है। अब ये लेकिन मेरे को डॉक्टर के पास पकड़ के ले गई। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा था 500 रुपये फीस, 1000 रुपये की दवाई लिखेगी तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो थोड़ी देर बाद मैं उसको फ़ोन लगा के बोले ये डॉक्टर के पास ले, बोलते अरे भैया कुछ नहीं होगा, एक दवाई बताता हूँ। मैं उसको बोला भाई दवाई बता रहा, चल गए, और वो जो एक या आँखों में पेन के लिए दवाई बताया, और बोला भैया कोलगेट अगर 2 घंटे वो जेल अगर लगा लियो, थोड़े समय बाद 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो वह फालतू में दवाई खा, तो गया 7 रुपये के एक टैबलेट लिए, वो खाया तो वो पेन चला गया, और वो जो जलन है वो बोला 2 दिन में चला जाएगा अपने आप। बस अभी आप वेल्डिंग कहीं मत देखना। हाँ अभी ठीक है, अरे राहत है। मैं सुबह तुम्हें फड़फड़ा रहा है। आईकूल डालते रहो। आईकूल क्या होता है? आईकूल का ड्रॉप आते हैं। ड्रॉप लाया हूँ दिन में 3-4 बार, हर 2 घंटे में डाल ही लेता हूँ। अरे मैं देखना नहीं चाह रहा था, मुझे मालूम है उसको देखने से गड़बड़ होगा, लेकिन अब ऐसे पकड़ा हूँ। अब वो बोल रहा है देखो भैया वो थोड़ा संभालो इधर जॉइंट हिल रहा है, तो मैं ऐसे करके देख लेता। कैसे देखेगी बता ना, बस से। अब तो कहाँ थी रे? नहीं कहाँ थी क्लास में? गायब थी ना क्लास में। रेगुलर रहो रे साला, तुम लोग तो साले नाच गाना में ही व्यस्त रहते इधर उधर दोनों। ध्यान भी नहीं है सर, मॉडल पेपर चल रहा है सर। है मेरे को तो बोलता कि कोई कार्यक्रम मैच चल रहा है दोनों। तो बेसा ये सर नहीं सर, मॉडल चल रहा है।
चलो इसको कैंसिल हो गया। इकोनॉमिक पैटर्न हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ social features. Now moving forward, social features. Now the society is as usual patriarchal. As usual सारे ट्राइबल्स का आप लोगों ने देखा सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेट्रियार्कियल होता है, पितृसत्तात्मक. And these tribals they are divided into 5 gotras. 5 gotras. ये जो पूरे पहाड़ी कोरबा है ना, ये 5 गोत्रों में डिवाइड है. 5 gotras and each gotras they have different specific totem. Totem जानते हो ना? Totem, their sacred belief, or it can be wooden pillar also, it can be a rock structure also, where they believe that their ancestors, their soul lives there. तो वो उसको मानते हैं. ठीक. Now एक यूनिक स्पेशल है इनका. से कितने गोत्र हो जाए? 5. ये लोग ये बिलीव करते हैं कि बच्चे भगवान की देन है ना. लाइक मुस्लिम कम्युनिटीज अलग देन है, आने दो, रोकना गलत है ना. इसी चक्कर में 1-8 दर्जन हो जाते हैं. पढ़े लिखे जो मुस्लिम हैं वो तो समझदार हो गए, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है उसमें यही होता है. वो लोग बोलते हैं अल्लाह की देन है, ये अबॉर्शन कराना क्या और नसबंदी कराना ये सब हराम, वो बिलीव करते हैं, है ना. और हिंदूज जो है, हिंदू से पीछे नहीं है. हिंदुओं में लड़के की चाह में 1-8 दर्जन कर बैठते हैं. आजकल थोड़ा कम हो गया है महंगाई के दौर में. तो ये लोग एक तरफ तो मानते हैं कि बच्चे भगवान की देन है, लेकिन दूसरी तरफ दे बिलीव बैड ओमेन when an infant cries. बच्चा रोता है ना तो उसको ये अशुभ मानते हैं. बैड ओमेन बोलते हैं ना, बैड ओमेन अशुभ, इंग्लिश में सब मिलेगा तुमको. बैड ओमेन मानते हैं, अशुभ मानते हैं. और कई बार इतना अशुभ मानते हैं कि उस रोने पर उसकी मार देते हैं. हाँ, ये भी एक है. ठीक है. तो पहाड़ी कोरबा मतलब स्पेशल फीचर है, ये एकदम ड्रेडफुल फीचर है कि वो they regard children as a gift of God. But there is a dreadful custom amongst Pahadi Korwas. They consider bad omen as the crying of an infant, and very ill. At some cases, they kill also. They kill that infant also. एक ये फीचर हो गया इनका. कुंभा. अब एक और आएगा कुंभा. सर वो फीचर पेपर रिपीट करो तो बता रहे. अबे समझा नहीं तुम्हें क्या बोला? वो रोने वो समझ आया, एक बार मैं देख रहा था लेकिन कैसे नहीं हुआ. They regard the crying of an infant as bad omen. Bad omen. O-M-E-N. नहीं ये रिकॉर्ड था. अबे crying of an infant. Crying. सारा बच्चे की रोने को अशुभ मानते हैं. तो क्या सोच रहा था? कुंभा. गोत्र में स्पेसिफाइड नहीं किए मतलब. नहीं जरूरत नहीं है. ऐसे तो सारे उसमें बहुत सारे गोत्र हैं. कितने नाम याद करोगे? वहां से क्वेश्चन रेयर है. इधर आओ. कुंभा. कुंभा is actually a hut made of leaves and shrubs. Leaves and shrubs. पत्ती है ना, पत्तियों से और झाड़ फूल जो छत बनाने के लिए. तो कुंभा is actually a hut made of leaves and shrubs, especially for Pahadi Korwa women, pregnant women, to deliver a baby. प्रसव कराने के अलग से ये जो हट बनाते हैं, है ना, पहाड़ी कोरबा. delivery for the delivery of a child is known as kumbha, है ना. A hut made of leaves and shrubs for delivering a child, for giving birth to a child or baby. तो उसे क्या कहते हैं? कुंभा. ठीक है. कुंभा. नाउ अब इसी से रिलेटेड है. अब डिलीवरी, पहाड़ी कोरबा वुमन डिलीवरी दे रही, तो जो दाई डिलीवरी करवाती है, हॉस्पिटल तो जाते नहीं, है ना,
तो जो दाई डिलीवरी करवाती है, द लोकल नर्स, द ट्राइबल नर्स परफॉर्म्स द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड डोंगिन, इज कॉल्ड डोंगिन, डोंगिन is called dongin. So who is dongin? The nurse, the local nurse, the tribal nurse which performs the birth of a child in amongst Pahadi Korwas is known as dongin. ठीक? Now death पे आ जाते हैं. तो Pahadi Korwas actually they bury dead bodies. They bury dead bodies. ये जलाते नहीं है, क्रेमेशन नहीं, दे बरी डेड बॉडीज. एक ये फीचर हो गया. और इसकी खासियत ये है कि they dismantle the huts where death occurs and they construct a new one. जिस भी घर में मौत होती है उस झोपड़ी को ये लोग जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं और एक नई झोपड़ी बनाते हैं. ये खासियत इनकी ये होगी. Dismantle the huts where death occurs and they construct a new one. एक ये हो गया. Now अब जब यहीं से आ गए तो हम लोग इसमें नवाधानी और कुमारी भाग दो शब्द सुनेंगे. जब डेथ पे आ गए तो दो शब्द सुनेंगे, दो वर्ड विल. नवाधानी, नवाधानी एंड कुमारी भाग, एंड कुमारी भाग, है ना. डेथ पे आ गए तो ये दो वर्ड्स विल हियर दीज टू वर्ड्स. नवाधानी. व्हाट इज नवाधानी? नवाधानी इज एक्चुअली अ डेथ रिचुअल ऑफ mourning which lasts for 10 days. है ना. When somebody dies in a family, then the ritual of mourning is known as Navadhani, and this ritual of mourning lasts for 10 days. 10 दिनों का शोक मनाते हैं. तो वो हाँ, अरे तो 10वें दिन होता है ना 10 का, वो पूरे उसको बोल रहे हैं 10 दिनों का ये जो शोक है ना, that mourning period for 10 days is known as Navadhani. ये यार मोर्न करना अलग बात है, दफना ऐसा थोड़ी है आपको उसको बॉडी को ले लेके ऐसे बोलते. नवाधानी. और एक कुमारी भाग. कुमारी भाग देख लो. द फ्यूनरल इज कॉल्ड कुमारी भाग. ऐसे क्या लगेगा तुमको कि खिलाने पिलाने वाली बात है ना. हाँ, कुमारी को भात खिला रहे, लेकिन द फ्यूनरल मतलब जब बलि करते हैं ना तो वो जो क्रियाकर्म होता है, दैट फ्यूनरल इज नोन एज कुमारी भात. ये फ्यूनरल, जो फ्यूनरल होता है ना उसे हम क्या कहते हैं पहाड़ी कोरवा? कुमारी भात. और नवाधानी तो जान गए आप लोग, द पीरियड ऑफ मोर्निंग, है ना, फॉर 10 days, दैट इज नवाधानी. ये याद रखना है आपको, नवाधानी है कुमारी. ठीक. नाउ अब डेथ हो गया, शादी करवा देते हैं. मैरिज सिस्टम अमंग्स कोरवास. मैरिज सिस्टम. नाउ द मोस्ट फेमस मैरिज